3 घंटे. The coefficients of z of t are represented by ck's, and we say ck equals to a times the coefficients of x of t, which are ak's, plus b times the coefficients of y of t, which are bk's. तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपको x of t के कोफिशिएंट्स पता हैं और y of t के कोफिशिएंट्स पता हैं, then you don't need to use the analysis equation. Analysis equation क्या थी? किसी को याद है एनालिसिस इक्वेशन क्या थी? समेशन फॉर्मूला। समेशन की फॉर्म में. कि ये जो आपके पास इक्वेशन है फोरियर सीरीज की, this one, summation ak e raised power j k omega naught, we call this thing as analysis equation. या अगर आप इसको फर्दर नीचे फॉर्म में ले आए, कॉस की फॉर्म में क्या था? x ऑफ t इज a नॉट प्लस टू समेशन ए के कॉस ऑफ के ओमेगा नॉट टी. ठीक है, तो अब अगर आपके पास सिग्नल है z ऑफ t एंड z ऑफ t इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स टी प्लस b टाइम्स y ऑफ t, तो एक प्रोसीजर तो आपके पास क्या है कि x ऑफ t को a से मल्टीप्लाई करें, फिर y ऑफ t को b से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्टेंट आए इन दोनों को ऐड कर दें. z ऑफ t भी आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल आएगा जिसका पीरियड वही होगा t. अब जो z ऑफ t आएगा इसके लिए आपने कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं c केस. सो टू फाइंड c केस वी कैन आल्सो यूज द एनालिसिस इक्वेशन. तो यहाँ पे z ऑफ t बेसिकली क्या होगा? C naught plus 2 times k from 1 to infinity C k's into cos of k omega naught t, and C k's will be equal to 1 over t integral z of t e raised power minus j k omega naught t. So एक ऑप्शन तो क्या है कि आपने अगर C k's फाइंड करना है तो you have to use this analysis equation, and the property says that कि अगर आपको x of t और y of t के कोफिशिएंट्स नोन है, then to find the coefficients of the third signal z of t, which are represented by ck, simply use the coefficients of the given signals to find the coefficients of the resultant signal. So ck's are equal to a times ak plus b times bk. Clear? तो linearity property says कि coefficients आपको पता है individual signals के, तो आप उन coefficients को आपस में scale करके add कर दें, that will give you the coefficients of the resultant signal, which is equal to the sum of the periodic signals with the same period. So it says that linearity property is easily extended to a linear combination of an arbitrary number of signals with the same period. शर्त यहाँ पे क्या है addition में कि all the signals must have the same fundamental period. Only then the coefficients of the resultant signal will be equal to the sum of the coefficients of इंडिविजुअल सिग्नल्स. तो चाहे आपके पास 10 सिग्नल्स हैं, 20 सिग्नल्स हैं, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, देन देयर सम का जो कोफिशिएंट्स आएंगे दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द सिग्नल्स विद अ कंडीशन कि पीरियड उसका वही होगा, सेम होगा हर सिग्नल का. अगर हर सिग्नल का पीरियड डिफरेंट होगा देन यू कैन नॉट say that the coefficients of the resultant signal will be equal to the sum of the coefficients. यहाँ पे सिर्फ एक limitation है, period must be same for all signals. Second property is time shifting. इस property का मतलब क्या है? अगर आप time domain में signal को shift करें, basically the coefficients are in frequency domain, तो उसका effect different frequencies पे क्या पड़ता है? So let's say x of t is a signal with the coefficients a के वही चल रहे हैं जो ऊपर given है, ठीक है? And then we say b k's are the coefficients of the signal which is a shifted signal, and we say shifted signal is represented by
y of t which is equal to x of t minus t naught and its coefficients are represented by bk's. तो bk's किसके इक्वल होंगे 1/t इंटेग्रल 0 to t. अच्छा एक और चीज़, अगर आप सिग्नल को शिफ्ट करेंगे तो क्या उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा फंडामेंटल पीरियड पे? तो अगर आप नो टाइम सर। टाइम डोमेन में सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल को शिफ्ट करें तो देन द पीरियड ऑफ द सिग्नल इज प्रिजर्व्ड. पीरियड पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. कोफिशिएंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? सो अगेन यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन we say bk's will be equal to 1/t integral from 0 to t x of t minus t naught. Basically we say this is y of t. ठीक है, so y of t equals to x of t minus t naught e raised to power minus j k omega naught t dt. So here we assume that, let's say tau is equal to t minus t naught in the integral, and noting that the new variable tau will also range over the interval of duration t. Then we obtain the coefficients as bk is equal to 1/t integral from 0 to t x of tau. तो अगर tau equals to t minus t naught, t किसके इक्वल होगा? t plus t naught. So this will be e raised to power minus j k omega naught tau plus t naught d tau, which can be rewritten as e raised to power minus j k omega naught t naught into 1/t 0 to tau t x of tau e raised to power minus j k omega naught t tau. तो ये जो आपके पास दूसरा टर्म है 1/t इंटेग्रल, दिस इज बेसिकली द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ऑफ द सिग्नल x of tau और x of t, क्योंकि शिफ्ट करने से सिग्नल पे फर्क नहीं पड़ रहा. So we say bk is equal to e raised to power minus jk omega naught t naught into a k's. तो ओरिजिनल सिग्नल है x of t जिसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? a k's. तो शिफ्टेड सिग्नल के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? डबल एरो मीन्स कि आप दोनों प्रोसेसेस अवेलेबल हैं. फंक्शन से उसके कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट से ओरिजिनल फंक्शन. So if x of t has the coefficients a k's, then y of t equals to x of t minus t naught has the coefficients b k's which are equal to e raised to power minus j k omega naught t naught a k. तो यहाँ पे conclusion क्या है? That this property, when a periodic signal is shifted in time, the magnitudes of its Fourier series coefficients remains unaltered. This magnitude of bk is same as magnitudes of ak. जबकि whereas only the phase of the different frequencies vary. और वो phase में variation कितना आ रहा है? This is omega naught t naught. पहले phase था सिर्फ omega naught. Now after shifting the phase is omega naught t naught. मीन्स कि अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल को शिफ्ट करें तो उसके जो शिफ्टेड सिग्नल के कोफिशिएंट्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जबकि सिर्फ उनका फ्रीक्वेंसी में फेज चेंज होगा, एंड दैट फेज चेंज विल बी ओमेगा नॉट टाइम्स टी नॉट. थर्ड प्रॉपर्टी इज रिवर्सल. मीन्स अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को रिवर्स करें तो उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट्स आर आल्सो reversed, means a k's are replaced by a minus k's. So y of t is equal to x of minus t summation a k e raised to the power minus j k omega naught t. x of t में क्या था? It is a summation a k is e raised to power plus j k omega naught t. तो x of minus t में क्या होगा? a k e raised to power minus j k omega naught t. So again make the substitution k is equal to minus m. So m is from minus infinity to plus infinity, a minus m e raised to power j m omega naught t. So यहाँ से simple clarification है कि y of t has the coefficients k's which are equal to a minus k. इस टाइम डोमेन में अगर आप सिग्नल को रिवर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हार्मोनिक कंपोनेंट्स आर आल्सो रिवर्स्ड. अब इसी प्रॉपर्टीज के फर्दर कुछ consequences हैं. In other words, time reversal applied to a continuous time signal results in a
time reversal of the corresponding sequence of Fourier series coefficients. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या है, इफ x of t is even. अब x of t even कब है, when x of minus t equals to x of t. फिर उसके coefficients are also even, means a k's are same as a minus k. Similarly, if x of t is odd, means x of minus t equals to minus times x of t, then its Fourier series are all coefficients are also odd, means minus a k's are equal to a minus k's. So अगर टाइम डोमेन में सिग्नल इवन होगा तो उसके कोफिशिएंट्स भी इवन होंगे, मींस a k's will be same as a minus k's. और अगर टाइम डोमेन में सिग्नल ऑड होगा, if x of minus t equals to minus times x of t, तो उसके कोफिशिएंट्स भी ऑड होंगे, मींस a minus a k's will be equal to a minus k. फोर्थ प्रॉपर्टी टाइम स्केलिंग. अब टाइम स्केलिंग से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा? अगर आप पीरियोडिक सिग्नल को स्केल करें तो उसका इफेक्ट क्या आता है? जी, ज्यादा होगा कम होगा? अगर करेंगे हम उसको कंप्रेस का उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जी आतिफ साहब, मोहम्मद आतिफ नहीं है? थोड़ी देर पहले तो बड़ा बोल रहे थे। जी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिग्नल का पीरियोडिक सिग्नल को कंप्रेस करें, उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा? सर आवाज नहीं आई सर। आवाज इसलिए आई है ना कि जो आप सुन रहे हैं वो आवाज मुझे वापस आ रही है अपनी। सर मुझे वो कॉल आ गया ऊपर से, तो सर आपकी आवाज नहीं। तो मुझे क्यों आ रही है अपनी आवाज, तुम्हारे माइक के थ्रू आ रही है? पता नहीं सर। अच्छा, कन्वर्सेशन तो ठीक कर रहे हैं, सवाल नहीं समझ आते। नो सर, ऊपर से मुझे कॉल आई तो सर मैंने नहीं सुनी। कॉल खत्म हो गई है? मैं ही कट, किसी ने मिस कॉल दिया ना सर, तो सिग्नल। अच्छा चलें, अभी सिग्नल दोबारा सुन लें ना। क्वेश्चन क्या है, पीरियोडिक सिग्नल को कंप्रेस करें तो कंप्रेशन के बाद जो सिग्नल बनेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा या कुछ भी नहीं होगा? सर कंप्रेस करेंगे तो ज्यादा होगा सर। कंप्रेस करेंगे तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जी। अच्छा माशाल्लाह। सरदार खिजर खिताब साहब हैं? जी सर। जी, तो पीरियोडिक सिग्नल को कंप्रेस करेंगे तो टाइम पीरियड की पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड से कम हो जाएगा। कंप्रेस करेंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुक्र है कोई तो जाग रहा है। टाइम स्केलिंग क्या है? टाइम स्केलिंग is an operation that is in general changes the period of the underlying signal. Specifically, if x of t is periodic with a period t and fundamental frequency omega naught, which is 2 pi divided by t. तो x of alpha t जो कि scaled signal है, where alpha is a positive real number, then it is periodic with a period t by alpha. ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सपोज 2 लें तो x of 2t का मतलब क्या है? दिस सिग्नल इज कंप्रेस्ड 2 टाइम्स, तो जो नया सिग्नल बनेगा उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाय 2।
और फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, अल्फा टाइम्स ओमेगा नॉट, मींस इट विल बी 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। तो अगर कंप्रेस करेंगे तो फंडामेंटल पीरियड कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। कम कितना होगा टाइम पीरियड, टी डिवाइडेड बाय अल्फा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अल्फा टाइम्स ओमेगा नॉट। सिमिलरली अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 लें, मींस एक्स ऑफ टी बाई टू विच इज एक्सपेंडेड सिग्नल, तो एक्सपेंडेड सिग्नल अल्फा 1/2 होगा, तो दिस विल बी देन 2t, मींस इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज डबल्ड। तो अगर टाइम पीरियड डबल होगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी half, then this will be omega naught by 2. So shortly we say that time scaling operation applies directly to each of the harmonic component of x of t. So we may conclude that the Fourier coefficients for each of those components remains same. Coefficients वही रहेंगे, a1s, a2s, a3s, a4s, ठीक। तो x of t के कोफिशिएंट्स क्या है, k from minus infinity to plus infinity a k 0 for j k omega naught t, x of alpha t मींस t को रिप्लेस कर दें अल्फा t से, तो दिस विल बी a k e raised for j k अल्फा ओमेगा नॉट t। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा होगा वो पीरियोडिक, लेकिन उसका सिर्फ फंडामेंटल पीरियड चेंज होगा। जब फंडामेंटल पीरियड चेंज होगा तो मीन्स के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ठीक है। तो it simply says that Fourier series coefficients have changed. It means that Fourier series representation has changed because of the change in the fundamental frequency. सीरीज चेंज होगी, कोफिशिएंट्स एक केस थे, अब भी वो एक केस रहेंगे, लेकिन हर के कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है कि अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके कोफिशिएंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अगेन हियर वी से x and y आर पीरियोडिक विद अ पीरियड सेम पीरियड t। x of t की कोफिशिएंट्स a केस, y of t की कोफिशिएंट्स b केस, एंड x of t मल्टीप्लाइड बाय y of t। जो इसके कोफिशिएंट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय h k, and h k's are equal to summation L from minus infinity to plus infinity AL BK minus L। अगेन इसका प्रूफ बुक में गिवन है, बट शॉर्ट डेफिनेशन क्या है कि टाइम डोमेन में सिग्नल्स को कन्वॉल्व करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे आर मल्टीप्लाइड, और अगर आप फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में दे आर मल्टीप्लाइड एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन दे आर convolved. So here we say it is a periodic convolution, ठीक है। x of t के कोफिशिएंट्स a k's हैं, y of t के कोफिशिएंट्स b k's हैं। So this equation can be rewritten as a k's convolved with b k's। Sixth property is conjugation and conjugate symmetry। अब ये प्रॉपर्टी ज़रा समझने वाली है, ठीक है। x ऑफ t के कोफिशिएंट्स हैं a केस, y ऑफ t के कोफिशिएंट्स हैं b केस, ठीक। अब क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन a के 0 से j k ओमेगा नॉट t। कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, x ऑफ t कॉन्जुगेट विल बी, अब इसमें हमने क्या किया था कि पहले कॉन्जुगेट लें और फिर उसके रिप्लेस कर दें समेशन वेरिएबल k बाय इट्स नेगेटिव। एक्स ऑफ टी कर चुके हैं इसी क्लास में पहले। एक्स ऑफ टी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू समेशन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a माइनस के कॉन्जुगेट e रेज़ पावर j k ओमेगा नॉट t। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस लेंगे। फर्स्ट केस क्या कहते हैं, एक्स ऑफ टी इज रियल। एक्स ऑफ टी रियल का मतलब एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कॉन्जुगेट। So in particular in this case we see Fourier series coefficients will be conjugate symmetric, that is मीन्स कि आप कंपेयर करें इन दो इक्वेशंस को,
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, as we say x of t equals to x of t conjugate, so comparing their right hand sides, तो a k's will be equal to a minus k conjugate. a k is equal to a minus k conjugate. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो we say they are conjugate symmetric. मीन्स कि उसको conjugate लें, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें और फिर k को रिप्लेस कर दें माइनस k से, so they will be same. If this equation is satisfied, then we say that the its corresponding time domain signal is real. सिर्फ आपके पास कोफिशिएंट्स नोन है, तो उन कोफिशिएंट्स को देख के आप बता सकते हो कि आपका जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो रियल होगा, वो इवन होगा या वो ऑड होगा. So the first case, if a k's are same as a minus k conjugate, means कि पहले j को रिप्लेस करें माइनस j से और फिर k को रिप्लेस कर दें माइनस k से. तो अगर आपके पास वही ओरिजिनल सिग्नल अगर कोफिशिएंट्स बनते हैं a k's, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, then we say that its corresponding time domain signal is real. Second says if x of t is real and even, then a k's are equal to a minus k. अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें. सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी से a k's are the same as a k conjugate. So it simply says if x of t is real and even, then so are its Fourier series coefficients. Means कि टाइम डोमेन सिग्नल अगर रियल और इवन होगा और जो उसके फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इवन भी होंगे. और ये इक्वेशन तभी justified है when its imaginary part is 0. Similarly, third case says if x of t is real and odd. So for odd, we have already said that x of minus t is equal to minus times x of t. Then its coefficients will be a minus k's are same as minus times a k. और अगर आप इस इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, तो a k is equal to minus times a minus k. Call this equation number 3. Now compare equation number 3 and equation number 1. एक ये equation number 1 and then this is equation number 3. So by comparing these two, we say a minus k conjugate is equal to minus a minus k. Again replace k by minus k. A k conjugate equals to minus times a k, or a k's are equal to minus times a k conjugate. अब प्लीज कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आपने पढ़ा था, ये इक्वेशन सिर्फ तब जस्टिफाई होगी जब आपके पास कोफिशिएंट्स प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होंगे. मींस इट्स रियल पार्ट विल बी 0, देन ओनली दिस इक्वेशन इज जस्टिफाइड. अगर आप कोफिशिएंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें एंड वी से इट्स रियल पार्ट इक्वल्स टू 0, they are only imaginary values, then its corresponding time domain signal will be real and odd. इस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या था कि अगर आपके पास कोफिशिएंट्स नोन है, फिर फ्रॉम दैट वी कैन डिफाइन द टाइम डोमेन signal, whether that time domain periodic signal will be real, it will be even or it will be odd. तो उसके लिए तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 and then equation number 3. So from the coefficients and formation we can define that the given time domain signal is even or it is odd or it is real, या फिर ना वो इवन है ना ऑड है. क्लियर? द लास्ट प्रॉपर्टी इज, कोई है या सारे सोए हुए हैं? जाग रहे हैं सर सारे. Yes, sir. जी जरा सारे यस सर करें बारी बारी. Yes, sir. जाग रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. देख रहे हो तेरे को No, sir. नहीं आती सर ऐसे. शेरमिया की आवाज नहीं आई.
यस सर, बोला सर। अच्छा बोले, उरूज की आवाज नहीं आई। यस सर, जाग रही हूँ। अच्छा मुझे लगा खाना बनाने गई हैं। नो सर। ओके, ये यस सर। प्रॉपर्टी क्या थी, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। कंजुगेशन एंड कंजुगेट सिमेट्री के नो सर। कोफिशिएंट्स पता हो तो उनसे आप सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टाइम डोमेन सिग्नल। The last property is Parseval's relationship. Relationship is always between two quantities. ठीक है, किसी एक बंदे को आप नहीं कह सकते कि क्या रिलेशनशिप है, यू नीड एटलीस्ट टू थिंग्स, कि दोनों बहन भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें हैं, whatever. So in case of Parseval's relation in context of periodic signals or Fourier series, as we say Fourier series is defined only for periodic signals, and we have already stated in previous classes that all periodic signals are power signals. So signal में दो चीजें हैं, signal power and signal energy. So we can find the signal power or signal energy by using the Parseval's relationship. अब ये सारी प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10 में सारी की सारी रिपीट होंगी विद माइनर चेंजेस, तो इसलिए आगे का कोर्स मुझे पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, कि ये चैप्टर क्लियर हो जाए फिर आगे बहुत आसान है आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना. So Parseval's relationship is always a relationship of signal energy or signal power with another quantity. So in terms of Fourier series, we say Fourier series is defined only for periodic signal. So we say that Parseval's relationship is basically a relationship between signal power and coefficients. ठीक है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स. चैप्टर 4 में जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, then we will say Parseval's relationship is the relationship between the signal energy and the Fourier transform. 4, 5 चैप्टर नंबर 4, 5 दोनों में ये चीज चलेगी, and then also in chapter number 9 and 10. But यहाँ पे simply क्या है, Parseval's relationship is the relationship between the signal energy, signal power and Fourier series coefficients. कोई बताएगा पीरियोडिक सिग्नल की एनर्जी क्या होती है? पीरियोडिक सिग्नल की एनर्जी क्या होती है? इन्फिनिटी जीरो. सर। फिर मिड में 120 नंबर कैसे लिए हैं? जी क्या होती है नुमान साहब? Infinity sir. Infinity, because generally we say energy deals with area under the curve. So area under the curve of a periodic signal is generally defined as infinite. So shortly we say power of the signal is given by continuous time signal. Limit t approaches to infinity, 1 over t, 2t integral from minus 2e to plus t x of t magnitude square. वहाँ पे भी बताया था मैग्नीट्यूड स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप स्क्वायर ना लें then sometimes positive and negative terms cancel the effect of each other और आपको जीरो पावर मिलती जो कि एक्चुअली नहीं होता. Now for periodic signals, to find power we always consider one time period. So one time period is averaged. So 1 over t integral limits from minus t by 2 to प्लस टी बाई टू, जो कि जनरली यूज होता है रूल. अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर टी. Call this equation number 1. Now as in the Fourier series representation, x of t is given by the synthesis equation summation a k e raised to j q omega naught t. x of t मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा कि अगर आप इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लें तो दिस विल बी a k मैग्नीट्यूड स्क्वायर. सो दिस विल बी a k is e raised to j q omega naught t. इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है? इट इज ओनली a k is मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ठीक है,
So this is summation A case magnitude square. Call this equation number 2. Now it says insert equation number 2 and equation number 1. तो क्या बन जाएगा 1 over t integral from minus t by 2 to plus t by 2 x of t square is replaced by this summation. This is summation k from minus infinity to plus infinity a k square dt. अब summation है with reference to k, integration है with reference to t. So we can rewrite this as summation a k square 1 over t integral from minus t by 2 to plus t by 2 dt. So simplifying the integral 1 over t minus t by 2 plus t by 2 dt equals to 1. So power equals to summation a k square. So the Parseval's relationship is given by the equation. For a periodic signal, power equals to 1 over t minus t by 2 plus t by 2 x of t square dt equals to summation k a k square, or limit t approaches to infinity 1 over t equals to summation a k square. तो शॉर्टली ये जो आपके पास रिलेशनशिप है दिस इक्वेशन, अगर आपके पास सिग्नल गिवन है टाइम डोमेन में, तो पावर फाइंड करने का एक ऑप्शन क्या है कि यूज दिस इक्वेशन, कि आप उसको इंटीग्रेट करें, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें, उसके बाद उसको इस इक्वेशन में इंसर्ट करके इसको इंटीग्रेट करें, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस. ये बताया गया इंटीग्रेशन आसान है या समेशन? इंटीग्रेशन समेशन दोनों अपनी अपनी जगह. सर समीशन समेशन आसान है. आसान समेशन आसान मैंने तो ये सुना है कि समेशन आसान है, इंटीग्रेशन मुश्किल है. नो सर, इंटीग्रेशन आसान. सर समीशन चलें आप फिर आसान है. इंटीग्रेशन, यहाँ पर टैलेंट है सर, उनके लिए इंटीग्रेशन आसान है. जिसको इंटीग्रेशन आसान लगती है वो ये वाली इक्वेशन यूज करे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और जिसको समेशन आसान लगती है तो वो ये इक्वेशन यूज करे. अब दिस बोथ इक्वेशंस का जो रिजल्ट आएगा, नहीं डिस्क्रीट के लिए है ना, तो कोफिशिएंट्स तो डिस्क्रीट है ना आपके पास, ठीक है. ए केस आर डिस्क्रीट बिकॉज वी से दे आर इंटीजर मल्टीपल्स, हार्मोनिक्स हैं. A1 होगा तो फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, फिर A4 होगा. कॉन्टिन्यूस को समेशन, देखिए समेशन वहां पे यूज होगा जहां पे आपके पास वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी. अब कोफिशिएंट्स आपके पास क्या हैं, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है? ए केस के की लिमिट्स क्या हैं? डिस्क्रीट है सर. डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट है ना, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2, 3 अप टू, ठीक है. तो यहाँ पे हम k इंटीजर ले रहे हैं बिकॉज इंटीजर मल्टीपल्स आर डिफाइंड एज द हार्मोनिक कंपोनेंट्स. तो a k's are discrete. So to find the total power of the signal, अगर आपको coefficients पता हो, you can easily use this right hand side to find the signal power. ठीक. लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी आपको इंटीग्रेशन पसंद है, तो पहले a केस गिवन होंगे, a केस से उसका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल फाइंड करें, फिर उस सिग्नल को यूज करें इस इक्वेशन में, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड द पावर. दोनों रिजल्ट सेम होंगे, रिजल्ट पे फर्क नहीं होगा. तो जनरली वी से प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज यही कहती हैं कि अगर आपको कोफिशिएंट्स पता है, सो फ्रॉम दोज कोफिशिएंट्स यू कैन डायरेक्टली फाइंड द सिग्नल एनर्जीज और सिग्नल पावर्स. अदरवाइज फिर वही होगा कि कोफिशिएंट्स पता है, उनसे इक्वेशन फाइंड करें, फिर उस टाइम डोमेन सिग्नल फाइंड करें, फिर उस सिग्नल से दोबारा एनर्जी फाइंड करें. For examples and summary of properties, let's see the book. सर बस काफी है ना सर. नहीं, अच्छा ये पहली एग्जांपल है, फोरियर सीरीज प्रॉपर्टीज. पहले टेबल को देख लें, इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी. एक तो इस किताब की भी मर्जी है अपनी.
गुड। तो प्रॉपर्टीज की आपको गिवन है जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिनियरिटी, देन टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में बाद में करवाता हूँ। एक ये थी मल्टीप्लिकेशन, x ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ टी, तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दे विल बी कन्वॉल्व्ड। दिस इज बेसिकली ए के कन्वॉल्व्ड विद बी के। फार्मूला वही लगता है, समेशन एल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एल बी टाइम्स बी ऑफ के माइनस एल। अब अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल्स को कन्वॉल्व करें, मींस x ऑफ टी कन्वॉल्व विद y ऑफ टी, तो जिसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रल टी एक्स ऑफ टा y ऑफ टी माइनस टा डेटा, बिकॉज x ऑफ टी और y ऑफ टी दोनों पीरियोडिक हैं, सो फॉर विद द सेम पीरियड, तो इंटीग्रेशन विल बी फॉर वन टाइम पीरियड। इसके रिजल्टेंट सिग्नल के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, दे विल बी multiplied, means their coefficients will be multiplied. So a k is multiplied by b k's। अब इसके साथ t इसकी स्केलिंग क्यों आ रही है, ये फॉर्मूला इंसर्ट करें तो वहाँ से आपके पास t मिलता है। So in short we say if time domain signals, two periodic signals x of t and y of t are convolved in time domain, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा कन्वोल्यूशन के बाद मिलेगा, उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, they will be t times a case into b case। एक और प्रॉपर्टी जो हमने नहीं पढ़ी, that is derivative। If x of t has the coefficients a case, then what are the coefficients of the derivative? So jk omega naught a case, which is jk omega naught equals to 2 pi by t into a k। अब जो आपके पास इक्वेशन है इन कोफिशिएंट्स की, x of t is summation a k raised to jk omega naught t, इसका डेरिवेटिव लें विद रेफरेंस टू t, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, a केस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू t क्या होगा, j टाइम्स k ओमेगा नॉट। तो अगर x ऑफ t के कोफिशिएंट्स हैं a केस, तो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, j k टाइम्स ओमेगा नॉट into a case given by this equation। Similarly इंटेग्रल, अगर आप सिग्नल पीरियोडिक है, पीरियोडिक सिग्नल का इंटेग्रल लें, again the resultant will be a periodic signal। Similarly अगर आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है और उसका डेरिवेटिव लें, तो resultant will be a periodic signal with the same period। इंटेग्रल के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, they will be simply 1 over j k omega naught into a case, where omega naught is 2 pi by t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 over j k into 2 pi by t into a k। So remaining properties are same, conjugate symmetry for real signals, real and odd, real and even, even odd decomposition, ये important है। even of x of t is represented by even of x of t, and odd of x of t is represented by xo of t। अब प्रीवियसली हम शायद पढ़ चुके हैं कि हर सिग्नल में एक इवन पार्ट है और एक ऑड पार्ट है। So we say x of t is equal to the even of x of t plus odd of x of t। तो अब कोफिशिएंट्स को अगर आप रिप्रेजेंट करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ए केस किसके इक्वल होंगे, रियल ऑफ ए के प्लस जे टाइम्स इमेजिनरी ऑफ ए के। ठीक, तो x of t will be equal to even of x of t plus odd of x of t। Then the coefficients of x of t a case will be equal to in the rectangular form as real of a case plus j times imaginary of a case। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कंजुगेट सिमेट्री में कि अगर सिग्नल इवन होगा तो उसके कोफिशिएंट्स हमेशा रियल होंगे, और अगर सिग्नल ऑड होगा और रियल होगा तो उसके कोफिशिएंट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे। तो अगर आपको एक पीरियोडिक सिग्नल
गिवन है periodic signal x of t is always equal to even part plus odd part, then the coefficients of the even part of x will be basically the कि अगर आप कोफिशिएंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसका जो रियल पार्ट है दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट्स ऑफ द इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, और जो कोफिशिएंट्स का इमेजिनरी पार्ट है j टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, they will basically give you the Fourier series coefficients of odd part of the signal. Parseval's relationship is given. अब एग्जाम्पल गिवन है, एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, बाकी I'll just go through them. यहाँ तक क्लियर है प्रॉपर्टीज? यस सर। ज़्यादा खामोशी हो तो शक हो जाता है ना कि कहीं कनेक्शन तो डिसेबल नहीं होंगे। जी कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि काम आसान हो? सर पढ़ाए वो बेहतर होगा। सर पढ़ने वाले पढ़ते हैं, जागने वाले जागते हैं, सोने वाले सोते हैं। अगर मोटरवे पे सो जाएंगे तो क्या होगा? सर साइड पे सो जाए तो बस नींद पूरा रोड चलता रहेगा। नहीं, मोटरवे पे सो जाएं तो थिंग्स आर डिफरेंट, रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन लोकल यस पे सर। सो जाएं तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। सर ड्राइवर तो जाग रहा होगा ना। नहीं, अगर आप ड्राइवर हो फिर सर फिर मोटरवे पे फिर पूरी गाड़ी सो जाएगी सर। पकी पकी सो जाएगी। ठीक है, तो मोटरवे पे चल रहे हैं तो इसलिए जागते रहे, सोएंगे तो एक्सीडेंट होगा और फिर उस एक्सीडेंट में जान बचना मुश्किल है। ओके प्लीज कंसीडर अ सर अभी हम सिग्नल। मोटरवे पे या जीटी रोड पे? मैं मोटरवे पे, सर हम तो जीटी रोड पे। 3 हफ्ते क्लासेस मिस हुई है, मोटरवे पे आना पड़ता है। ठीक है। ओके प्लीज, अभी हमने एक स्क्वायर वेव कंसीडर की थी, ठीक है, दैट वाज यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्वायर वेव थी, पीरियोडिक स्क्वायर वेव, उसके कोफिशिएंट्स हमने फाइंड किए थे। वो कोफिशिएंट्स क्या आए थे प्लीज ये याद कर लें अपने पास। ए केज आर इक्वल टू साइन जनरलाइज्ड फॉर्म साइन ऑफ के ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय k पाई फॉर k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू 2t1 डिवाइडेड बाय a। तो ये आपने याद करने है, रटा लगाने हैं कि अगर आपके पास ये वाली पीरियोडिक स्क्वायर वेव है उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, they are given by this equation, ठीक है। So we say here in these all these examples that these coefficients are known, ये आपको याद है। नुमान साहब शॉर्टकट दिखाएं ना, अपनी बताएं अपनी जगह पे जाने का। सर आज सर क्लास का इसका शॉर्टकट ये है कि आप इसको यहाँ से ना खोलें ना, इसको वो अपने नोट्स वो में खोलें, आप रीडर में स्क्रीन शेयर करें। इधर से ना यहाँ से भी हो सकता है और नहीं, यहाँ से करते हैं तो प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब प्लीज यहाँ पे आपने रिमेंबर ये चीज रखनी है कि पीरियोडिक स्क्वायर वेव इज नोन और उसके कोफिशिएंट्स भी हमें पता है। अब ठीक है, और भी करो।
अब इसमें क्या गिवन है, कंसिडर अ सिग्नल जी ऑफ टी विद अ फंडामेंटल पीरियड 4। दिस इज नोन दैट कि आपको जो सिग्नल गिवन है उसका फंडामेंटल पीरियड है 4। वी कुड डिटरमिन द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ऑफ टी डायरेक्टली फ्रॉम द एनालिसिस इक्वेशन। आपको जो एनालिसिस इक्वेशन गिवन है आप उसमें डायरेक्टली कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं जी ऑफ टी के। इक्वेशन क्या थी, 1/t इंटेग्रल जी ऑफ टी ई रेस टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अगर आप उसमें जी ऑफ टी को इंसर्ट कर दें और उसको इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो आपको डायरेक्टली उसके कोफिशिएंट्स मिलेंगे। बट हेयर इट सेज दैट यूज प्रॉपर्टीज टू फाइंड द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। और प्रॉपर्टीज के लिए आपको रेफरेंस क्या गिवन है कि पीरियोडिक स्क्वायर वेव एज अ रेफरेंस गिवन है, ठीक है। एंड g of t is given as this thing। ये आपको एक सिग्नल गिवन है g of t। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या करना है, एक ऑप्शन तो ये है ना कि आप इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 1/t कैपिटल T इक्वल्स टू 4। तो 1/4 इंटेग्रल फ्रॉम -2 टू 0 और उसमें एम्पलीट्यूड क्या है -1/2 ई रेस पावर जे के ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 1/4 which is in value इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू ई रेस पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। उस इंटेग्रल को सॉल्व करें, जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट्स ऑफ g of t। But here question is that you are not allowed to use that, you are supposed to use the properties। और properties क्या है कि आपको फोरियर सीरीज गिवन है ऑफ द स्क्वायर वेव x of t, ठीक है। अब इस g of t को और स्क्वायर वेव को आपने आपस में एक इक्वेशन बनानी है। मींस g of t को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ द पीरियोडिक स्क्वायर वेव, ठीक। उसके बाद अगर आपको x of t के कोफिशिएंट्स पता है देन यूजिंग द प्रॉपर्टीज यू कैन आल्सो फाइंड ऑल द पॉसिबल कोफिशिएंट्स। इस प्रीवियस पेज पे मैं जाऊं तो यहाँ पे इसने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि g of t किसके इक्वल है x of t -1/2, ठीक है, with t equals to 4 and t1 equals to 1। कि आपके पास जो स्क्वायर वेव गिवन है उसमें अगर आप फंडामेंटल पीरियड 4 लें और t1 की वैल्यू 1 कंसिडर करें then that periodic square wave and this given signal g of t are related with the equation x of t minus 1 -1/2। अब मैं दोबारा जरा उस पीरियोडिक स्क्वायर वेव पे जाऊं, ये वाली, प्लीज इसको जरा गौर से देख लें। ये कलर्स कहाँ से मिटेंगे, सर जी बस आज के लिए इतना बहुत ज्यादा हो गया सर। नहीं बस इसे एक Yes, को देखना है ना। देखिए यहाँ पे -t1 से +t1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसको 1 ले लूँ -1 से +1, ठीक है, और फिर मैं इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करूँ तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा 0 से लेकर मीन्स t1 इज 1, सो ये -1 से +1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर इसको मैं 1 यूनिट राइट शिफ्ट करता हूँ तो ये -1 वाली वैल्यू 0 पे जाएगी, 0 वाली वैल्यू 1 पे और 1 वाली वैल्यू 2 पे, ठीक। अब इसका एम्पलीट्यूड है 0 से 1 तक y एक्सिस पे,
जबकि आपके पास जो दूसरा सिग्नल गिवन है उसका एम्पलीट्यूड है -1/2 से +1/2। मींस इस x ऑफ t को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करें विद द वैल्यूज कैपिटल T1 इक्वल्स टू 1 एंड कैपिटल T इक्वल्स टू 4। इसको आप 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें और फिर इसमें से 1/2 को माइनस कर दें, तो ये एम्पलीट्यूड है 0 से 1 तक, तो 1 - 1/2 + 1/2 और फिर 0 - 1/2 इज -1/2। So in short, the g of t and x of t are related by shortly g of t or x of t are related by this equation. G of t equals to x of t minus 1 minus 1/2. ठीक है, जो given g of t or x of t they are related by this equation. Now we are supposed to find the coefficients of g of t. It's saying knowing that coefficients of x of t are known, which are given by the equation a k's, जो आपके पास given थी sin of k pi by 2 divided by k pi. तो इसके coefficients क्या बनेंगे? So we say b k's, please. The time shift property in table 3.1 indicates that if the Fourier series coefficients of x of k are denoted by ak, then what are the coefficients of x of t minus 1? And the coefficients of x of t minus 1 are represented by bk's, which are equal to ak e raised to the power minus jk omega naught t naught. यहाँ पे t naught की वैल्यू 1 है और ओमेगा नॉट की वैल्यू बनती है 2 पाई बाय कैपिटल T, जिस 2 pi by 4 simplified as pi by 2. So the coefficients of x of t by using time shift property are bk's, which are equal to ak's into e raised power minus jk pi by 2, where ak's are the coefficients of x of t. अब हमारे पास एक और सिग्नल है -1/2 and -1/2 is basically a constant signal. तो किसी भी constant signal के लिए कौन से coefficients defined है? Only the DC component is defined. And let's say this DC coefficients are defined by CKs. ठीक है, तो CKs are equal to 0 for K not equal to 0, and CKs are equal to -1/2 for K equals to 0. मीन्स कि C नॉट की वैल्यू है -1/2, जो कि कांस्टेंट सिग्नल है. तो कांस्टेंट सिग्नल का कोफिशिएंट्स क्या है? ओनली द डीसी वैल्यू इज डिफाइंड विच इज -1/2 C नॉट. अब डी केस क्या होंगे? ठीक है, सो हियर वी से दैट डी केस आर द कोफिशिएंट्स फॉर g of t. ठीक, तो g of t के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? From the equation, g of t is x of t minus 1/2. The coefficients of g of t are say represented by dk's, which are equal to ak e raised power minus jk pi by 2. कब? जब k की वैल्यू 0 नहीं होगी. And dk's are equal to a naught minus 1/2. कब? When k equals to 0. Basically this dk's are equal to pk's, ठीक है, k not equal to 0, and dk's are equal to b naught plus c naught. तो b naught की वैल्यू क्या है? a naught, और c naught की वैल्यू यहाँ से क्या है? -1/2. So for k not equals to 0 it is bk's, which are ak's e raised power minus jk pi by 2. And for k equals to 0 they are a naught minus 1/2. अब a naught की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, which is 1/2. So 1/2 minus 1/2 equals to 0. So the coefficients of the resultant signal g of t, they are ak's
which are given by sine of pi k by 2 divided by k pi multiplied by e raised to power minus j k pi by 2. Cup for k not equal to 0 and they are 0 for k equals to 0. इस एग्जांपल में क्या था, आपको स्क्वायर वेव के कोफिशिएंट्स पता हैं which are AKs and we are supposed to find the coefficients of the signal g of t which are represented by dk. So using linearity property and time shifting property, dk's किसके इक्वल होंगे, bk's plus ck's, where bk's are the Fourier series coefficients of x of t minus 1 and ck's are the coefficients of the signal minus 1 by 2. ठीक, तो dk's are basically bk's plus ck's. ck is only defined for k is equal to 0. So dk's are b naught plus c naught for k equals to 0. And if k is not equal to 0, then this is simply bk, which is then equal to ak raised to power minus jk pi by 2. In this case, we use the Fourier series properties to find the coefficients of resultant signal. जी जिंदा है? Yes, sir. नहीं सर, खत्म होने वाले हैं हम। यस सर। सर बस समझ करें आ रही सर। है? समझ आई है? बात करें सर, प्लीज सर सर। प्लीज पास करें सर, बहुत थक x of t with a period t is equal to 4. अच्छा प्लीज आपने यहाँ पे करना क्या है, ये कोफिशिएंट्स तो आपके पास आ गए हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज. आपने एज अ प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करना और डायरेक्टली इस पीरियोडिक सिग्नल के कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन. इसके कोफिशिएंट्स डी केज हैं, तो डी केज विल बी बेसिकली इक्वल टू 1/t इंटीग्रल फॉर वन टाइम पीरियड t g of t e raised to power minus j k omega naught t dt. उस इक्वेशन को यूज करें और वेरीफाई करें कि इसके कोफिशिएंट्स यही आते हैं. So now consider the example 3.7. Again it says it's a triangular wave with a period t equals to 4. Fundamental frequency क्या हो जाएगी, omega naught pi by 2 आएगी. This is shown in figure. अब इस फंक्शन को कोरिलेट करें g of t के साथ, तो इसकी और g of t की कोरिलेशन क्या बनती है, इन दो सिग्नल्स की कोरिलेशन कोई बताएगा आपस में, यहाँ पे नहीं दी उसने जी. सर ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है ना, ऊपर वाला। x ऑफ t गिवन है ना, x ऑफ t g ऑफ t का डेरिवेटिव है या g ऑफ t x ऑफ t का डेरिवेटिव है जी. डेरिवेटिव कौन सा है, g ऑफ t डेरिवेटिव है x ऑफ t का, x ऑफ t डेरिवेटिव है g ऑफ t का. ये सर जो स्क्वायर वेव है ये डेरिवेटिव है किसका, नीचे वाली का ट्रायंगुलर वेव का। ट्रायंगुलर वेव का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये चीज मिलेगी. यस सर। कैसे, चले आप इसको ठीक है. देखें 0 से 2 तक सिग्नल है जिसका स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप इस लाइन का क्या आता है, +1/2. ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक इसका एम्पलीट्यूड आएगा 1/2. फिर अगर आप इस पीरियोडिक सिग्नल की शक्ल देखें ट्रायंगुलर वेव की, 2 से लेकर 4 तक इसका स्लोप नेगेटिव है और वैल्यू उसकी वही है 1/2, मींस इट इज -1/2. सो 2 से लेकर 4 तक इट इज -1/2. तो आप कह सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू द g of t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t. x ऑफ t क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ
जी ऑफ टी। तो जी ऑफ टी के कोफिशिएंट्स आपने फाइंड कर लिए डी केस। तो टेबल में जाएं, वहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी उठाएं और सिंपली उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दें। कब जूम होगा? प्लीज इसको देख लें यहाँ पे। Dk's are the coefficients of g of t, which is equal to the derivative of x of t. तो अगर x of t के coefficients are represented by ek's, तो dk's किसके इक्वल होंगे? j times k pi by 2 into ek. हमने फाइंड क्या करने हैं? coefficients of x of t. So ek's will be equal to dk को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दें. So this will be 2 divided by jk pi dk, which is equal to dk's are 2 sin of pi k by 2 divided by jk pi whole square e raised power minus jk pi by 2 कब? when k is not equal to 0. k equal to 0 तो फिर क्या होगा? Can be determined by finding the area under the one period of x of t and dividing by the length of the period. तो e naught को आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं या अदरवाइज from that equation. Clear? Hello. यस सर। यस सर। अब एक सर ये बाकी हम देख लेंगे, थ्री सर पॉइंट समझ नहीं आपसे। एग्जाम्पल 3.8 को देख लें तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। 3.8 के बाद है 3.9। ठीक है, पास दो टॉपिक्स चलेंगे, एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। जो कुछ अभी कंटिन्यूस के लिए पढ़े द सेम इज रिपीटेड फॉर डिस्क्रीट, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या है। मुझे इस कोर्स का कोई ऑब्जेक्टिव बता सकता है? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जी, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं सारी चीजें? अरे काश हम भी पढ़े लिखे होते। ठीक है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द स्टूडेंट्स इन दिस कोर्स विल लर्न क्या लर्न करेंगे आप लोग? टाइम डोमेन and frequency domain methods for the analysis and modeling of continuous time and discrete time signals and systems. टाइम डोमेन में मतलब क्या होगा कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, एलटीआई सिस्टम्स बेसिकली। तो टाइम डोमेन में सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है। फ्रिक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो भी सिस्टम है वो किस टाइप का फिल्टर है, वो हाई पास फिल्टर है, वो लो पास फिल्टर है, वो बैंड पास फिल्टर है। आपने कोई फिल्टर डिजाइन करना है, आपने किस तरह से उसको डिजाइन करना है। सो बेसिक गोल इज टू लर्न टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स। अब मेथड्स का मतलब क्या होगा? मेथड्स मीन्स Fourier series is one method, Fourier transform is another method, Laplace transform is another method, Z transform will be another method. ठीक है, convolution is one method. तो ये सारे methods हैं। तो अब इन सारे methods को समझना है किसके लिए? For the analysis and modeling. एनालिसिस का मतलब पहले बताया था कि जी बताइए सिग्नल पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, इवन है, ऑड है, एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है। ठीक है, एंड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन।
और विद रेफरेंस टू सिस्टम्स का एनालिसिस का मतलब क्या है, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी बताएं कि विद मेमोरी है, विदाउट मेमोरी है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल है, so many other. And also this course serves as a foundation course for subsequent courses in signal processing, control systems and communication theory. फिर ये 4 objectives थे basically. After successfully completing this course, students should be able to, ये आपके लिए लिखा गया था, ठीक है, मैंने अपने लिए नहीं लिखा. पहला क्या था, differentiate between continuous and discrete time signal and systems, their types, properties, and to perform basic operations of signals. Perform time domain analysis of continuous and discrete time LTI systems using convolution integral, convolution sum, impulse response and step response. The third क्या आता है, frequency domain है. Perform frequency domain analysis of signals and systems, that is Fourier series, Fourier transform in both continuous and discrete. और आखिरी सबसे important है, that says that apply different transform techniques, that is Laplace transform and Z transform, for the analysis and characterization of signals and systems. सादा अल्फाज में एक कोर्स का ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं टू डिजाइन अ बेसिक फिल्टर. अब वो हाई पास फिल्टर है, वो बैंड पास फिल्टर है, वो बैंड स्टॉप फिल्टर है, बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज इन मैटलैब. अब मुझे मैटलैब का सेशन बताएं, आज लेने 2 बजे या कल लेने, कल का टाइम बताएं. नमाज के बाद ठीक है, कल 2:30 बजे. यस सर. सर कल 2:30 बजे ले सकते हैं, आज 2 बजे ले लें. नहीं, आज 2 बजे कल ठीक है. कल ठीक है कल ना? 2:30 बजे ठीक है. कल जुम्मे की 2:30-3 बजे. नमाज के बाद 2:30 बजे. सर आप सर सुबह कल सुबह 8 बजे. नहीं, सर सुबह बात- सुबह लें सर, सुबह लें फिर 8 बजे. सर आप सुबह कल क्लास कौन सी आपकी और कितने से कितने बजे तक है? कोई क्लास नहीं है सर, सुबह लें. फ्राइडे फ्री है आपका? सर लैब के लिए टेस्ट कर लेंगे, वो क्लास के बाद से चलेंगे. आपकी फ्राइडे को टाइम टेबल में कोई क्लास होती ही नहीं है. यस सर, नहीं होती. सर मैं मुन्ना ने कहा था कि मैं 9 से 12. ठीक है 9 सर. से 11 सर सर. 8 से ठीक है 11. सही है सर. 8 से 11. नहीं, 9 8 से 11. 9 से 11 ठीक है सर. ठीक है सर, 8 से 11 बेसिक है ना, पहली लैब. ठीक है, 9 से 11. कल पहली लैब है, सिर्फ आपको ये बताना है कि साइन सिग्नल कैसे बनाएंगे, कॉज कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल कैसे. सही है सर. शुरू में ठीक है सर. लेकिन शर्त ये कि मैटलैब अपने पास रखें और साथ साथ कर दें. ओके यस सर. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट. ठीक है, यस सर. है सर आप रिकॉर्ड नहीं करते? सर रिकॉर्ड मैंने करते हैं हम रिकॉर्डिंग रिजल्ट. कर दी है, लेक्चर अब रिकॉर्ड नहीं